Hello students, now this is the very important part of this video. अब तक हमने 3 पार्ट इस स्टोरी के बना दिए हैं। आज ये 4th पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस कहानी में अब यहाँ से ट्विस्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. It means उसे किसी प्रकार का भी कोई उत्तर नहीं मिला जब उसने अपने पिताजी से कहा था और माताजी से कहा था कि मुझे उस झूले में झूलना है। उसने मुड़कर अपने पिता और माताजी की ओर देखा, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। ना वे आगे थे और ना ही वो पास में थे और ना ही उसके पीछे, यानी कि उनका कोई भी अता पता नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. "Mother, father," he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसके सूखे गले में से गहरी और एक भयानक सी चीख निकली। वह जहाँ भी खड़ा था वहाँ से माता और पिताजी चीखता हुआ एक झटके के साथ भागा। गरम व भयंकर जो आंसू थे उसकी आंखों से बहने लगे और उसका जो चेहरा था वो भय की वजह से या डर की वजह से ऐंठ गया। और डर की वजह से वह पहले एक और भागा, फिर दूसरी ओर और फिर इधर उधर भागने लगा और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। माताजी पिताजी बार बार पुकारता हुआ रोने लगा। उसकी जो पगड़ी थी पीले कलर की वो भी खुल गई थी और उसके कपड़े धूल से गंदे हो गए थे। अब आगे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. His cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. थोड़ी देर इधर उधर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया। उसका रोना दबी हुई सिसकियों में बदल गया। थोड़ी दूरी पर हरी घास पर वह अपनी धुंधली आंखों से आदमियों और औरतों को बात करते देख सकता था। उसने चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों को ध्यान से देखा, पर जो लोग बिना वजह हंस और बोल रहे थे उनमें उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, "Mother, father," near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderers' eyes and hefty shoulders. फिर वह तेजी से भागा और इस बार वह मंदिर की ओर, जहाँ लोग भीड़ लगाते महसूस हो रहे थे। वह जगह पूरी तरह आदमियों से भरी थी, पर वह लोगों के पैरों के बीच में से होता हुआ माताजी पिताजी चिल्लाता हुआ भागा। मंदिर के द्वार के पास लोगों की भीड़ और अधिक हो गई थी और जो लोग जिनकी आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था या जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जिनके कंधे मजबूत थे
वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. उस बच्चे ने उन लोगों के पैरों के बीच में से आगे घुसने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन उनकी हलचल में ठोकरें खाकर धर धर लुढ़कने लगा। वह किसी के पैर के नीचे आकर कुचला जाता अगर वह पूरे जोर से न चीखता, "माताजी, पिताजी!" उस भीड़ में एक पुरुष ने उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बच्चे को बाहर निकाला और अपनी गोदी में लिया और उससे तुरंत पूछा कि बेटा, तुम यहाँ कहाँ से आए, तुम किसके बच्चे हो? लेकिन इस बार बच्चा और भी ज़ोर से रोने लगा, "मुझे तो बस अपनी माँ चाहिए और अपने पिताजी चाहिए." The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into a thousand shrill sobs, and he only shouted, "I want my mother, I want my father." और उस भले मानुष ने बच्चे को चुप कराने के लिए बहुत सारे लालच या प्रलोभन दिए और उसे झूले के पास भी वो ले गया और पूछा, "तुम घोड़े पर बैठोगे?" बच्चे के गले से हजारों सिसकियां निकलने लगीं और वह बोला, "नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरी माँ चाहिए और अपने पिताजी चाहिए." The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swing cobra. "Listen to that nice music, child," he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, "I want my father, I want my mother." यहाँ पर जो सज्जन है जिसने उसे बचाया है या उस भीड़ से बाहर निकाला है, वह सज्जन उसको चुप करने के कई सारे जतन या प्रयत्न कर रहा है। अब वह पुरुष उसे उस ओर ले जाता है जहाँ पर वो चार्मर, जिसे हम कहते हैं सपेरा, ठीक है, अभी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। उसने बच्चे से कहा, "बच्चे, यह सुंदर संगीत सुनो," परंतु उस बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और पहले से भी डबल आवाज़ में बोला कि मुझे तो अपनी माँ चाहिए और अपने पिताजी चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. "Would you like a rainbow-colored balloon?" he persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, "I want my mother, I want my father." अब उसको चुप करने के लिए गुब्बारे वाले के पास ले गया और उसे इस बात की होप थी कि उसके जो गुब्बारों के जो सुंदर सुंदर रंग हैं उसको देख कर के बच्चे का जो ध्यान है वो हट जाएगा और वह चुप हो जाएगा। लेकिन उसने बच्चे को मनाने का काफ़ी जो है प्रयास किया और पूछा कि तुम यह रेनबो कलर्ड गुब्बारा लोगे, लेकिन बच्चे ने उसे जवाब दिया कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे सिर्फ पिताजी चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. "Look, can you smell those nice flowers? Child, would you like a garland to put round your neck?" The child turned his nose away from the basket and retired his sob, "I want my mother and I want my father." और उस बार उस पुरुष ने बच्चे को लुभाने का
मतलब जो भी कोशिश थी वो नहीं छोड़ी, वह वो जो कोशिश हो सकती थी वह करता चला गया और उस मेले के द्वार के पास उसे ले गया जहाँ पर वो जो फ्लावर सेलर फूल बेच रहा था या फूलों की माला बेच रहा था। और उस सज्जन ने या उस पुरुष ने उस बच्चे से कहा, देखो बेटा, फूलों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम भी में माला पहनोगे? बच्चे ने अपना नाक उस टोकरी से दूसरी ओर मोड़ लिया और फिर सोप करने लगा या रोने लगा और कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। आइए अब लास्ट और फाइनल पैरा की ओर बढ़ते हैं। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब यह सोचते हुए कि जो बच्चा बहुत ही परेशान है, दुखी है, अपने माँ बाप को बार बार याद कर रहा है, तो उसने सोचा कि चलो उसको मिठाई की दुकान पर ले जाता हूँ जिससे कि ये खुश हो जाएगा। और वह पुरुष उसे हलवाई की दुकान पर ले जाता है और उससे पूछता है, बेटा तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है और तुम कौन सी मिठाई लोगे? लेकिन बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपना मुंह मोड़ लिया और रोने लगा और फिर से बोला कि मुझे अपनी माँ चाहिए और अपने पिताजी चाहिए। तो सुना मेरे बच्चों, इस पूरी स्टोरी में हमने एक बच्चे के जीवन में माता पिता का जो रोल होता है उसके बारे में याद दिलाए रखा जाता है। और जब तक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है, यह अपने आप को पूरी तरह से सेफ़ या सुरक्षित महसूस करता है। वह उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है जिन्हें वह खाना चाहता है या फिर जिनसे वह खेलना चाहता है। किंतु ये सभी चीज़ें अपना आकर्षण खो बैठती हैं जब वह बच्चा अपने आप को वह अपने माता पिता के बिना देखता है। और इस तरह से माता पिता का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह पूरे प्यार और स्नेह के साथ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखें। और यहाँ पर यह स्टोरी पूरी तरह से विराम लेती है। धन्यवाद, आपने इस कहानी को, इस स्टोरी को अच्छे सुना। और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ इसको फिर से सुन लीजिए जिससे कि ये कहानी आपको बेटा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।